हाय गाइस, आज की हमारी प्रॉब्लम है nth Fibonacci नंबर। So before solving this problem, we have to understand what is Fibonacci सीरीज। सो यार Fibonacci सीरीज का फंडा सिंपल सा हमारा Fibonacci सीरीज जैसा ही है, जहाँ Fibonacci सीरीज में हमारे इनिशियल टू वैल्यूज फिक्स होते हैं और आगे की सभी वैल्यूज को हम प्रीवियस टू वैल्यूज का सम करके जनरेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से Fibonacci सीरीज में हमारी इनिशियल थ्री वैल्यूज फिक्स होती है और आगे की सभी वैल्यूज को हम प्रीवियस थ्री वैल्यूज का सम करके जनरेट कर सकते हैं। So let us take an example for Fibonacci series. As I told you, in Fibonacci series, first three numbers are fixed. What are they? 0, 1 and 1. So what will be the next value? The next value will be the sum of previous three numbers, which are 0 plus 1 plus 1. So the next value will be 2. And what will be the next value? The next value will be the sum of 1 plus 1 plus 2, which is 4. And what will be the next value? The next value will be the sum of 1 plus 2 plus 4, which is 7. एंड इसी तरीके से हम अपनी ट्रिबोनाकी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इफ समवन आस्क व्हाट इज nth ट्रिबोनाकी नंबर, सो सिंपली वी कैन से nth ट्रिबोनाकी नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ n minus 1 Fibonacci number plus n minus 2 Fibonacci number and plus n minus 3 Fibonacci number. So I hope I have cleared how we can find nth Fibonacci number. So let's see how we can solve this problem by using the recursion. तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट में। तो यार किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्शन से सोल्व करने के लिए हमें सिंपल सा स्मॉल टास्क परफॉर्म करना होता है और बाकी के सभी टास्क हमारा रिकर्शन सोल्व करता है। तो व्हाट विल बी द स्मॉल टास्क हियर? स्मॉल टास्क कैन बी, if someone asks what is the nth Fibonacci number, we can simply sum the previous three numbers values. लेकिन इन प्रीवियस थ्री नंबर्स की वैल्यूज़ कौन फाइंड करेगा हमारे लिए? रिकर्शन। तो हमारा सिंपल सा टास्क क्या होगा, हमें बस प्रीवियस थ्री नंबर्स का सम करना है और प्रीवियस थ्री नंबर्स की वैल्यूज़ हमारे लिए लाएगा रिकर्शन। ओके, देन व्हाट विल बी द बेस कंडीशंस हियर? एज वी ऑल नो, initial three values are fixed in Fibonacci series. So the base conditions will be, if n equal to 0, we will simply return 0. If n equal to 1, we will simply return 1. If n equal to 2, we will simply return 1. So these will be the base conditions and this solution will be more clear when we will write the code. So let's move to the code part. तो यार सबसे पहले हम अपने कोड में एक हेल्प नाम का रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसमें हम पास करेंगे इंटीजर n फॉर विच वी हैव टू जनरेट द वैल्यू एंड वी विल पास द रेफरेंस ऑफ आवर आंसर टू स्टोर आवर आंसर। देन वी विल डू द स्मॉल टास्क एंड एज आई टोल्ड यू व्हाट विल बी द स्मॉल टास्क, वी विल सिंपली return the sum of previous three numbers values and these values will be generated by the recursion. So I am calling the help function for n minus 1 value, for n minus 2 value and for n minus 3 value. So the small task is done. Let's generate the base conditions. So what will be the base conditions? As I told you, if n equal to 0, we will simply return 0. If n equal to 1, we will simply return 1. If n equal to 2, we will simply return 1. So these are the base conditions. So चलते हैं अपने मेन फंक्शन में। Sorry, we have to return our answer also. So अपने मेन फंक्शन में हम सबसे पहले इनिशियलाइज करा लेते हैं अपने आंसर को, देन वी विल सिंपली रिटर्न द हेल्प फंक्शन where we will pass n and answer. So before running this code, let's create an recursion tree. So suppose we have to generate the recursion tree for fifth Fibonacci number.
सो इसके लिए सबसे पहले हमारे होंगी 3 रिकर्सिव कॉल्स एज वी रिटन इन द कोड. 5 minus 1 4, 5 minus 2 3 एंड 5 minus 3 2. सेम इस 4 के लिए हमारे पास 3 रिकर्सिव कॉल्स रहेंगी. 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 4 minus 3 1. सेम इस 3 के लिए हमारे पास 3 रिकर्सिव कॉल्स रहेंगी. 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, 3 minus 3 0. सेम इस 3 के लिए भी हमारे पास 3 रिकर्सिव कॉल्स रहेंगी. 2 1 0. बट यहाँ पर इस 2 के लिए हमारे पास कोई रिकर्सिव कॉल नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न कराएंगे अपनी वैल्यू 1 फ्रॉम द बेस कंडीशंस. सेम ऐसे ही 1 के लिए हमारी रिटर्न होगी 1, 0 के लिए रिटर्न होगी हमारी वैल्यू 0. तो यहाँ पर हमारी 3 के लिए जो वैल्यू जनरेट होगी 1 + 1 + 0. सो 3 के लिए हमारी वैल्यू रहेगी 2. सेम जैसे 2 से हमारी रिटर्न रहेगी 1, 1 से रिटर्न होगी हमारी वैल्यू 1. सो 4 की वैल्यू क्या रहेगी 2 + 1 + 1. सो 4 की वैल्यू रहेगी हमारी 4. सेम इस 3 की वैल्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं हमारी रहेगी 2 से 2 से रिटर्न होगी 1, 1 से रिटर्न होगी 1, 0 से रिटर्न होगी 0. तो 1 + 1 + 0 2. सेम इस 2 से हम रिटर्न कराएंगे सिंपल 1. सो 5th के लिए हमारी वैल्यू रहेगी 4 + 2 + 1 विच इज़ 7. तो इस रिकर्शन ट्री में आप देख सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे सब ट्री रिपीट हो रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर 3 के लिए हमारा सब ट्री रिपीट हुआ है. सो इफ़ समवन आस्क व्हाट इज़ 100th फिबोनाची नंबर, सो वहाँ पर हमारे बहुत सारे सब ट्रीज रिपीट रहेंगे. सो इससे हमारी क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर हमें छोटा सा डायनेमिक सॉल्यूशन यूज़ करना होगा. तो देखते हैं पहले क्यों करना होगा. सो उसके लिए हम अपना प्रीवियस कोड रन करके देखते हैं. then it will be clear to you why we need to use dynamic solution here. So let's run the code and initial 3 cases are correct for us. Let's submit this solution. And yes, we get the time limit exceed. Okay, why we get this from the recursion tree we can see. Okay, let's see how we can solve this time exceed problem. अगर हम यहाँ पर अपनी 3 की वैल्यू को स्टोर करा लें, जैसे हम यहाँ पर 3 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 2. सेम अगर हम यहाँ पर इसके डेप्थ में ना जाएं और यहाँ पर 3 पे आते ही हमें पता लग जाए कि 3 की वैल्यू हमने पहले भी फाइंड की है. सो इस तरीके से हम अपनी टाइम लिमिट को कम कर सकते हैं. और इसके लिए हम अपने सॉल्यूशन में क्या यूज़ करेंगे देखते हैं. सो अपनी टाइम लिमिट को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक वेक्टर यूज़ कर सकते हैं. विद द वैल्यू ऑफ -1. सिंपली हम इसको यहाँ पर पास भी करना होगा. एंड सेम डीपी को हमें अपने सभी रिकर्सिव कॉल्स में भी पास करना होगा. ओके, सो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि किसी वैल्यू का किसी नंबर की अगर वैल्यू हमने पहले फाइंड की है तो हम सिंपली उस वैल्यू को रिटर्न करा दें, ना कि हम उसकी डेप्थ में जाएं. सो हम यहाँ पे चेक कैसे करेंगे. इफ़ डी ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी कि उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं फाइंड करी जा चुकी है, तो सिंपली वी विल रिटर्न डी ऑफ एन, यानी कि डी एन में जो भी वैल्यू है हम उसको सिंपली रिटर्न करा देंगे. अब यहाँ पे डी एन की वैल्यू कैसे आएगी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालने से पहले डी एन की वैल्यू को भी स्टोर करा लेंगे अपने आंसर की वैल्यूज़ को. सो यहाँ पे क्या होगा, हमारी सभी आंसर की वैल्यू, सपोज 5th फिबोनाची नंबर की वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी. तो यहाँ से हमारा -1 हट जाएगा. और जब नेक्स्ट टाइम 5th फिबोनाची नंबर को हमें फाइंड करना होगा और डी एन यानी कि डी ऑफ 5 विल नॉट इक्वल टू -1, तो इट विल सिंपली रिटर्न विच वैल्यू वी हैव फाइंड प्रीवियसली फॉर डी 5. ओके, so let's run this code and check if the syntax is correct or not.
So we have done some mistake. If dp of n, sorry, if dp of n is not equal to -1. ओके, यहाँ पर हम अपनी इफ कंडीशन तो लगाना ही भूल गए हैं. What is the okay? We have to pass dp here too. Let's run the code. Yeah, initial three cases are accepted. So let's try to submit this solution. I hope now it will be submitted. And now we can see the solution is submitted.